Jordan part for two people. दो लोगों के लिए यरदन जो है दो भागों में बट गई And they crossed the Jordan. और उन्होंने यरदन को पार किया। And Jordan started flowing again. और जब वो लोग पार हो गए तो यरदन फिर से बहने लगी। Then Elisha said, I want double portion. और फिर एलीशा ने कहा कि मुझे तेरे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए। Elijah said, if you see me going up, you will get it. और एलिया ने कहा यदि तू मुझे ऊपर उठा लिए जाते समय देखेगा तो ऐसा हो जाएगा। Listen to me. सुने, Look at what I'm saying. देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। They were going walking. वो चलते हुए जा रहे थे, Suddenly a chariot came. अचानक से एक रथ आ जाता है Fire, chariots of fire. और ऐसे एकदम अग्नि से भरे हुए रथ। And Elijah was like, it just came and took Elijah like this. और वो आए एलिया को इस तरह से उठाकर लेके गए। Elijah did not get into the chariot. He just took him like this. एलिया जो है उस रथ पे चढ़ा नहीं, वो रथ आकर एलिया को ऐसे उठा के लेके गए And went up into the heaven with the chariots of fire, horses of fire. और वो घोड़े और रथ जो आग से भरे हुए थे वो एलिया को ऐसे उठाकर ऊपर लेकर गए। Look at me. हमारी ओर देखें, It is not a story happened to somebody else. These kinds of visions, these kinds of manifestations, these kinds of things can happen even today for the church. देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उस समय हो गई थी। इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की बातें आज भी कलीसियाओं में होती हैं और होना है और होना चाहिए। होना चाहिए। हालेलुया। We have to hear the trumpet sounds. We have to hear those kinds of things. We have to see the angels of God. We have to see the chariots of fire. We have to see the fire of God. We have to see the cloud of God. We have to see these things. ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते हुए देखें, हम परमेश्वर के आग से भरे हुए रथों को देखें, हम परमेश्वर के बादल को देखें। हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसी बातों को होते हुए देखें। Hallelujah. Hallelujah. Where is the hunger in the church? When Ram Babu talks like this, people say, oh, that's all demonic. It won't happen today. कलीसिया में वो भूख आज कहाँ रह गई है? जब राम बाबू इस विषय में बात करता है तो लोग कहते हैं कि बस ये खाली ये Demonic है, दुष्ट आत्मा की ओर से है। It won't happen now. ये नहीं होता अभी। Why it won't happen? क्यों अभी नहीं होता? My God is the same yesterday, today and forever. मेरा परमेश्वर तो आज कल युगान युग एक जैसा है। Hallelujah. Hallelujah. Chariot went up. वो रथ ऊपर चले गए And from Elijah, और फिर एलिया की ओर से the mantle fell down. और वो चादर जो थी वो ऐसे गिरी नीचे, Mantle fell down. और उसकी चादर जो थी वो ऊपर से नीचे गिरी। Look at me. हमारी ओर देखें, Elisha had a desire. एलीशा की अपनी एक इच्छा थी Double portion. और वो जो है दुगना भाग चाहता था। That anointing. और वो अभिषेक, The anointing that can make that dream to become alive. और वो अभिषेक जो उस सपने को जिंदा कर सकती है, It fell down in the form of a mantle there. और वो अभिषेक जो है एक चादर के रूप में गिरा। It did not fall on Elisha. वो एलीशा के ऊपर नहीं गिरा। Put the scripture, 2 Kings chapter 2, दूसरा राजा दूसरा अध्याय verse 12. और 12वां वचन। And Elisha saw it, he cried, my father, chariots of Israel, and the horsemen thereof. He saw him no more. He took hold of his own robes and rent them into 2 pieces. और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। Do you know who is a man of God? क्या आप जानते हैं परमेश्वर का जन कौन है? Do you know who is a man of God? क्या आप जानते हैं परमेश्वर का जन कौन है? One Elijah was equal to the chariots of Israel and horsemen of Israel. एक एलिया जो था वो सारे इज़राइल के रथों घुड़सवारों से भी बढ़कर था। Elisha knew this man of God with whom I'm connected, this my father,
My spiritual father, this man of God, he is not ordinary. He is equal to chariots of Israel, horsemen of Israel. एलीशा इस बात को जानता था कि ये परमेश्वर का जन जो मेरे पिता के समान है, जो मेरा आत्मिक पिता है, ये वो कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, वो सारे इजराइल के रथों और सारे इजराइल के घुड़सवारों से भी बड़ा है। That was a respect Elisha had on Elijah. नॉट धंधा सीखने का नहीं। और इस प्रकार का आदर और सम्मान एलीशा के मन में एलिया के लिए था, धंधा सीखने के लिए वो जुड़ा हुआ नहीं था। Elisha knew the man with whom I am walking, this is not ordinary man. This one man is equivalent to chariots of Israel, horsemen of Israel. That kind of man I am walking with. और एलीशा इस बात को जानता था कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने अपने आप को जोड़ लिया है वो एलिया, वो सारे इजराइल के घोड़े और रथों और सवारों से भी कई गुना अच्छा है, जिसके साथ मैं चल रहा हूं वो ऐसा है। इस प्रकार का आदर वो अपने जो है आत्मिक पिता के को से करता था। That's the reason why he got that. और इसी वजह से एलीशा को वो मिला। When you don't honor the man of God, you will not get what the man of God carries. जब आप परमेश्वर के जन का आदर नहीं करेंगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का जन अपने अंदर लेके चलता है। Honor the man, you'll get what he carries. और उस परमेश्वर के जन का आदर करें, आपको वो मिलेगा जो उसके अंदर है। The mantle didn't fall on him. देखिए वो जो चादर थी वो एलीशा पे नहीं गिरी, It fell down. वो नीचे गिरी। Why? क्यों? Read the next verse. And he took up the mantle. और फिर उसने एलिया की चादर उठाई। उठाया, इसका मतलब वो गिरा था। चादर गिरा था, चादर गिरा था, उसको एलीशा ने उठाया। सुनो, जो आपके लिए रखा गया है वो यहां गिरा है, उसको आपको उठाना होगा। आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको कुछ करना होगा उसके लिए। Thank you, Jesus. Raise your hands up to the Lord. Raise your hands up to the Lord. Father, we thank you for your presence. Just open your mouth and thank Him. आइए अपना मुख खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। Come on, come on. सब अपने मुंह खोल कर open your mouth and thank Him. सभी अपना मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। Thank you for your presence, Father. पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। Holy Spirit, thank you for your presence. पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए We will धन्यवाद। receive that impartation. प्रभु, वो बातों को हम अपने अंदर ले We will लें। receive your touch in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम आपके स्पर्श को ले लेते हैं। We have picked up our mantle that fell for our sake. ओ प्रभु परमेश्वर, हमने वो अपनी चादर को ले लिया है जो हमारे लिए वहां पे गिराई गई थी। We thank you, Father. हम धन्यवाद देते हैं पिता। Oh, it fell from you and we picked it up. ओ प्रभु, आपकी ओर से गिरी थी और हमने अपने ऊपर ली। Thank you, Father. धन्यवाद From पिता। today, ministries change. आज से सेवकाई बदल जाएगी, Miracles will happen. चमत्कार होंगे, Souls will be saved. आत्माएं बचाई जाएंगी, Churches will grow. कलीसिया बढ़ेगी, Finances will come. आर्थिक बातों में रुपया पैसा आएगा, Miracles will happen. चमत्कार होंगे, Breakthroughs will come. विजय आएगी, New doors shall open. नए दरवाजे खुलेंगे In the name of Jesus. यीशु मसीह के We नाम thank में। you, Father. पिता धन्यवाद, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I give you glory. मैं आपको महिमा देता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। सब मिल के एक बार आमेन। आमीन। प्रभु के लिए ताली जोर से। Oh, hallelujah. Please sit down. मेहरबानी करके बैठ The जाएं। story still continues. कहानी और आगे बढ़ती है, Story still continues. वो कहानी और आगे बढ़ती है। Let's go about 2 Kings again. आइए फिर से हम दूसरा राजा निकालें Say with me now, I picked up my mantle. और आप मेरे पीछे कहें, मैंने अपनी चादर को उठा लिया। Come on, say with me, I picked up my mantle.
मैंने अपनी चादर उठा ली। Hallelujah. हालेलुया। Now the mantle fell. वो चादर गिर गई। Elisha picked it up. एलीशा ने क्या किया? उस चादर को उठाया। Say with me once again. I picked up my mantle. हमारे साथ कहें, मैंने अपनी चादर उठा ली। You picked up your mantle, Ravi. रवि, आपने अपनी चादर उठा ली You है। picked up your mantles. आपने अपनी चादर उठा ली है। Hallelujah. Hallelujah. Vikas, where are you? Come here. You picked up your mantle today. विकास, आपने भी आज अपनी चादर को उठा लिया। You picked up your mantle today. आज आपने अपनी चादर उठा ली। There is a mighty, mighty, mighty anointing in this place. इस जगह पर एक बहुत ही भारी ऐसा महान अभिषेक है। Mighty, mighty, mighty anointing in this place. बहुत 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 ज्यादा भारी अभिषेक है। Elisha picked up the mantle. एलीशा ने उस चादर को उठा लिया। You picked up your mantle. आपने अपनी चादर उठाई है। Say with me, Elisha picked up his mantle. और Say with me, everybody say. और हमारे साथ कहें, एलीशा ने अपनी चादर उठा ली। I picked up my mantle. मैंने अपनी चादर उठाई। Say it says, Elisha picked up his mantle. I picked up my mantle. Say it, एलीशा ने say it. अपनी चादर उठाई। बोलो, बोलो, एलीशा मैंने ने अपनी चादर उठाई। बोलिए इस चीज को। Picked up your mantle. Hallelujah. And now comes a question. अब एक सवाल आता है, How do you make this mantle to work in your life? कि कैसे आप इस चादर को अपने जीवन में काम करने देंगे। He took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back and stood at the banks of Jordan. फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के किनारे पर खड़ा हुआ। Look at me. Elijah, what a presence of God, my brother. Elijah took the mantle, smote Jordan, Jordan parted into pieces. Elisha crossed, Jordan began to flow again. ध्यान दें, एलिया ने वो चादर ली और उसको यरदन के पानी पर मारा। यरदन का पानी दो भागों में बंट गया। एलिया और एलीशा इन दोनों ने यरदन नदी पार कर ली। And Jordan started flowing again. जब वो उस पार चले गए, यरदन का पानी फिर से बहने लगा। Now Elisha picked up his mantle, अब एलीशा ने अपने लिए अब वो चादर को उठा लिया। came back to Jordan. अब फिर यरदन के किनारे पर आ गया। Jordan is flowing. अब यहाँ पे यरदन बह रही है। It's not enough to pick up the mantle. देखिए, चादर का उठा लेना काफी नहीं है। After picking the mantle, चादर उठाने के बाद what did Elisha do? एलीशा ने क्या किया? He did not kneel down, start praying. उसने घुटने टेक कर वो पानी के बाजू में प्रार्थना करना शुरू नहीं किया। He took the mantle, उसने उस चादर को लिया and he took the mantle of Elijah, fell from him, and stroked the water and said, "Where is the Lord God of Elijah?" और उसने एलिया की चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? He took the mantle and smote Jordan. उसने भी वो चादर लिया और यरदन के पानी पे उसको मारा। Where is the God of Elijah? उसने कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? Church, the day believers start asking this question, the day pastors begin to ask this question, the day evangelists begin to ask this question, where is the God of the Bible? और जिस दिन विश्वासी ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, जिस दिन पास्टर ये सवाल पूछना शुरू करेंगे, जिस दिन परमेश्वर के सेवक ये सवाल पूछना शुरू करेंगे कि बाइबल का परमेश्वर कहाँ है, then you will see the Bible God stepping into action. तब आप देखेंगे कि उसी बाइबल का परमेश्वर काम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लेगा। I don't know who is the God today in the church. और मुझे नहीं पता चर्च में आज कौन परमेश्वर है। Powerless God. सामर्थहीन परमेश्वर होगा, Only He can save. केवल उद्धार दे सकता है। That's it.
बस इतना He ही, may heal a back pain. या फिर पीठ के दर्द से लोगों को चंगाई मिल सकती है, That's it. बस इतना ही। The God who parted Red Sea, we don't know who is he. और वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भागों में किया, हमें पता नहीं वो कौन है। The God who stopped the sun, moon, we don't know who is वो he. परमेश्वर जिसने सूर्य और चंद्र को रुका दिया, हमें नहीं पता वो कौन है। The God who raised the dead, we don't know who is वो he. परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, हम आप नहीं जानते वो कौन है। The God who came, met the people as a pillar of cloud, pillar of fire, we don't know who is he. वो परमेश्वर जो अपने लोगों से मिलने के लिए आग के खंभे में, धुएं के खंभे के समान आता था, हमें नहीं पता वो कहां है। We want a God with whom we are comfortable. हम ऐसे ही परमेश्वर को अपने लिए चाहते हैं जिसके साथ हमें सहूलियत होती है। We don't want a God, when he comes into picture, things will become uncomfortable and things will happen the way I don't want them to happen. I have to believe things I never believed for. I have to do things I never did before. No. Everything will be, everything will be hayward and people will start talking bad. Suddenly उसको क्या हो गया? कितना अच्छा था, simple church, क्या हो गया? और लोग जो है ऐसे परमेश्वर को नहीं चाहते जिसके आने से सारी बातें उल्टा पुल्टा होने लगे, या ऐसी बातें होने लगे जो मुझे पसंद नहीं है, या ऐसे जीवन बदलने शुरू हो जाए जो मैं नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि लोग हमसे ये पूछे कि अरे बाप रे, इस चर्च में ये नया क्या हो रहा है। I'll ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, How many of you seen my ministry for past 10 years? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से इनकी सेवकाई को देखा है? Don't you see it is different today than it was before? क्या आपको ये नहीं लगता कि पहले से और अभी की सेवकाई में बहुत फर्क है? My preaching has changed. मेरे प्रचार का तरीका बदल गया, My message has changed. मेरे संदेश बदल गए। Why? क्यों? God met with me क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की and asked me, और मुझसे पूछा, do you want me as I am? Do you want me as you like? और परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे वैसे ही चाहता है जैसा मैं हूं, या फिर ऐसे चाहता है जैसे तुझे पसंद है? It took time for me to say yes. और परमेश्वर को हाँ कहने में मुझे बहुत समय लगा। Honestly, I didn't say yes immediately. और मैं ईमानदारी से बताऊं, उसी समय मैंने परमेश्वर को हाँ नहीं कहा। Nearly 34 days I took to say yes to God. परमेश्वर को इस बात में हाँ कहने के लिए 34 दिन लगभग मुझे लगे, Because I knew the price I have to pay for that if I say yes to him. क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं परमेश्वर को हाँ कहूंगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत मुझे अदा करनी पड़ेगी। I said to God, मैंने परमेश्वर से कहा, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए दोस्त, मुझे आप चाहिए। हालेलुया। Many people started talking about Ram Babu kuch ho gaya, ye ho gaya, wo ho gaya. People started talking nonsense all over India. Oh, kuch ho. I didn't care. I want God the way He is, not the way I want. लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो परमेश्वर को मैं ऐसे ही चाहता हूं जैसा वो है। हालेलुया। यार, जो हमारे बीच में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक पेटी में डाल के ऐसे ही करो नहीं कर सकते। जब वो आया सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हालेलुया, यस। जैसा हम चाहें ऐसा नहीं होगा। जैसा जिंदगी में आप नहीं देखोगे वो चीज होने लगेंगे। वहां पे चुनौती आता है कि परमेश्वर जैसा आप है ऐसा चाहिए, या जैसा मैं कंफर्टेबल हूं वैसा चाहिए। हालेलुया। He took the mantle. उसने उस चादर को उठा लिया। Where is the God of Elijah? उसने कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? Hallelujah. I want you to know this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान Some लें। of you will not like this. Some of you, after hearing this preaching, the negative message about me will start. और मुझे पता है कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मेरे संदेश के बाद नकारात्मक बातें का विचार आपके अंदर शुरू हो जाएगा। Do you know something? क्या आपको कुछ बात पता When है? you see a man of God used by God and miracles happening, when you see a man of God used by God and miracles happening जब through आप him, किसी परमेश्वर के जन को देखते हैं कि परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है और उसके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, you must say, आपके लिए कहना जरूरी है। now I ask like this, और मैं इस प्रकार से पूछता हूँ, Reinhard Bonnke winning 1 million people to Christ. और मैं बोलता हूँ, रेनॉल्ड बंक के हमें 10 लाख लोग मसीह के लिए जीतना है। I said,
मैंने कहा where is the God of Reinhard Bonnke? कि रेनाल्ड बॉन्के का परमेश्वर कहाँ है? When I hear about Smith Wigglesworth raising the dead, I ask, where is that God of Smith Wigglesworth? जब मैं स्मिथ विगतवर्थ को जो है मरे आदमी को जिंदा करते हुए देखता हूं तो मैं पूछता हूं स्मिथ विगतवर्थ का परमेश्वर कहाँ है? He was not only Elisha's God, he was Elijah's God first. देखिए वो केवल एलिया का ही परमेश्वर नहीं था, वो एलिशा का भी परमेश्वर था। Do you know what I tell my church and my family, my son, my daughter? आप जानते हैं मैं अपनी कलीसिया, अपनी पत्नी, अपने बेटे बेटी को क्या कहता हूं? I tell my church, और मैं अपनी कलीसिया को कहता हूं, I tell my children, मैं अपने बच्चों को कहता हूं you must say about God. कि तुम्हें परमेश्वर के बारे में ये कहना है, You must say, तुम्हें कहना है you are my father's God. You are my pastor's God. तुम मेरे पिता के परमेश्वर हो, तुम मेरे पास्टर के परमेश्वर हो। When Red Sea parted, they began to say, the Lord is God. We will praise him. Our father's God. We will exalt him. जब लाल समुद्र दो भाग में हुआ तो उसने कहा हमारे पुरखाओं का परमेश्वर, हमारे पिताओं का परमेश्वर, हम उसकी स्तुति करेंगे। Before he became Ankit's God, he was first Rambabu's God. इससे पहले कि वो अंकित का परमेश्वर बनता, वो राम बाबू का परमेश्वर था। So my son will pray, my father's God. और इसीलिए मेरा बेटा प्रार्थना करेगा मेरे पिता का परमेश्वर। What did Paul say, Philippians 4:19? और फिलिपियों 4:19 में पौलुस क्या कहता He है? did not say, our God will supply. वो ये नहीं कहता कि हमारा परमेश्वर जरूरत पूरी करेगा, My God will supply your need. और वो कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। Philippines people were Paul's children. और तुम्हारी मतलब वो Philippines people. फिलिपियों के जो लोग थे वो पौलुस के आत्मिक बच्चों के समान थे। So Paul said, तो इसलिए पौलुस कहता है your God is your father's God. देखो जो तुम्हारा परमेश्वर है वो तुम्हारे पिता का परमेश्वर है। My God और he didn't say, मेरा हमारा नहीं, परमेश्वर, हमारा नहीं, my God, वो कहता है मेरा परमेश्वर, हमारा नहीं कहता है, वो कहता है मेरा परमेश्वर, my God will supply your need. मेरा परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारे घटी पूरा करेगा। हालेलुया। He did not say हमारा परमेश्वर. He didn't say our God will meet your need. He said my God will meet your need. वो ये नहीं कहता कि हमारा परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा, लेकिन वो कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पूरा करेगा। Be bold when you pray, when you have a man of God as a spiritual father you look up to, you respect, you honor, like the way Elisha respected, honored Elijah. Be bold to pray. You are my father's God, you are my God. और इसीलिए बड़े साहस के साथ जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पास कोई आत्मिक पिता के समान व्यक्ति है, आप उसके प्रार्थना करते समय कह सकते हैं कि तू वो जो मेरे पिता का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। This teaching is missing in the church today. और आज कलीसियाओं में ये सिखाया ही नहीं जाता है। यीशु आपका भी मेरा भी सबका परमेश्वर, हाँ, लेकिन आपसे आपका पिता है, पहले वो उसका परमेश्वर, बाद में तेरा परमेश्वर बना है। When you want something, you know, you look at a man of God or a woman of God whom you respect, maybe Catherine Kuhlman, क्या anointing था, then you must be God of Catherine Kuhlman, you are my God. और जब भी आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, परमेश्वर के जन को देखें जो आपके आत्मिक पिता के रूप में है, या कैथरीन कुलमैन को देखें जो भी परमेश्वर ने उसके द्वारा चमत्कार किए, उन सारी चीजों को देखकर कहें कि तू जो कैथरीन कुलमैन का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर। Where is the God of Elijah? एलिया का परमेश्वर कहां है? Jordan. और उसने वो चादर जो थी यर्दन के पानी पर जोर से मारी और फिर से यर्दन जो थी वो दो भागों में बट गई। I'll ask you a question here. मैं यहां पर आपको एक सवाल पूछूंगा। Why did Elisha smite Jordan? क्यों एलिशा ने यर्दन के ऊपर उस चादर को मारा? Did Bible anywhere it says that and God told Elisha to smite Jordan?
क्या बाइबल कहीं पर ऐसा बोलती है कि परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि यरदन के जल पर उस चादर को मार? No. नहीं। फिर क्यों किया? फिर उसने ऐसा क्यों किया? One reason. और उसकी He वजह had ये थी, seen Elijah doing it. क्योंकि एलीशा ने एलिय्याह को ये करते हुए देखा था। Hallelujah. When he saw what his father doing, he did it. जब उसने देखा कि उसका पिता उसने क्या किया, ठीक वैसा एलीशा ने भी किया। People say, he is doing whatever Rambabu is doing. लोग कहेंगे अरे ये तो से बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे राम बाबू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है करने का, बिल्कुल ठीक है। If you have somebody as your father, nothing wrong in you doing what your father do. और अगर कोई आपके लिए आत्मिक पिता के रूप में है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप वो करें जो आपका आत्मिक पिता करता है। Why? क्यों? Jesus said, यीशु ने कहा, whatever I see my father do, that I do. यीशु ने खुद कहा कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं। He never said, my father different, I am different. यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा पिता अलग है, मैं अलग हूं। पिता का मिनिस्ट्री अलग होता है, बेटा का मिनिस्ट्री अलग होता है। नहीं, अलग नहीं होता, अलग तरीके का होता है, अलग नहीं होता है। Hallelujah. Jesus said, whatever I hear my father say, that I say. और यीशु मसीह ने भी कहा, जो मैं अपने पिता को कहते हुए सुनता हूं, मैं कहता हूं। Jesus never had prestige problem. यीशु मसीह को अपने मान सम्मान इज्जत की कभी समस्या नहीं ये रही। क्या कभी भी क्या तुम्हारा ओरिजिनलिटी नहीं है क्या? जो कि तुम्हारा पिता बोलता है वही बोलता है, जो कि तुम्हारा पिता करता है वही करता है। ओरिजिनलिटी नहीं है क्या यीशु तुम्हारा? ने लोगों की इस बात की परवाह नहीं करी कि लोग उनके पास आकर कहेंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पिता जो बोलता है वैसा तुम बोलते हो, जो पिता करता है वैसा तुम करते हो, तुम ओरिजिनली खुद क्यों नहीं अपनी तरफ से करते? He said no. यीशु ने उसकी परवाह नहीं करी। He said उसने कहा, no originality. नो कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। Why? क्यों? Me and my father are one. क्योंकि मैं और मेरा पिता एक है। When that kind of honor is there, देखिए जब इस प्रकार का आदर होगा, awesome things will happen in your life. अद्भुत बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। And when you do that, और जब हम ऐसा करेंगे, you will not do what your father does. तो आपके पिता जो करते हैं वैसा नहीं करेंगे, You will do more than that. आपके पिता से भी ज्यादा करेंगे। Why? क्यों? Elisha did double than Elijah. क्योंकि आप देखिए एलीशा ने जो है वो एलिया के द्वारा किए गए चमत्कारों से दुगने चमत्कार किए। And Jesus said, यीशु ने कहा you can do more than what I did. कि तुम मुझसे भी बढ़कर काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। Hallelujah. Evangelist Ram Babu welcomes you to Face with Jesus conference on the 4th and 5th of August. Venue is Damodar Hall, N.M. Joshi Vidya Sankul, Dr. Baba Saheb Ambedkar Road, Parel, East Mumbai. Come and meet Jesus face to face and be transformed and receive your miracles and anointing.